Hello to all. So today's topic, we are going to start with this capital budgeting. Before starting with capital budgeting, we have to understand what is financial management, because capital budgeting is one of the very important decisions in financial management. So what happens? See, there are two words, financial and management. What it means, management of your finance, or financial management is management of financials of your company. So what exactly is this? That how, for example, you as a personal level or in the company there are some finance, or the finance is there, and or in your pocket there is some finance, there is some funds. How effectively you are going to use that finance? That is financial management. You have, in the 1st of December, for example, in the first of month starting, you have some money with you. How effectively you are going to use that money so that you can fulfill all of your expenditure wherever you want to invest your money, wherever you want to spend your money. After that also you will have some saving, you have some money so that you can save that also in case of personal level. Similarly, in corporate sector, where from where you are going to finance the money, that is important. Where you're going to invest that money, that is important. And other than that also, there are many things those are very important to manage finance, so that effectively you can utilize the funds and you will get higher returns out of that. We will see this. So financial management, as I'm saying, see, money need is continuous. In our personal life we can talk about, or in corporate sector, whether you are going to start your business today or you have already have established business, both the corporates, both the companies need finance. Every the need is going to be there. Then what I said, in financial management what is very important, that money you need, for example, I need 5 lakh rupees. I got 5 lakh rupees, मेरे को कहीं से मिल भी गया 5 lakh rupees. बट नाउ वो पैसा मैं कहाँ यूटिलाइज करने वाली हूँ सो दैट विल गिव मी अच्छे वाले रिटर्न्स, मुझे वो मिले, कहाँ इन्वेस्ट करने वाली हूँ वो पैसे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यूटिलाइजेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू रिसीविंग ऑफ मनी. क्यों? क्योंकि आपको 5 लाख चाहिए थे, आपको 5 लाख मिल गए. अब 5 लाख मिलना इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट क्या है, आपको वो रिटर्न भी करने हैं. अगर तो आपको वो रिटर्न नहीं करने, वो अलग बात है, जो कि हो नहीं सकता. आपको ऑब्वियसली वो पैसे वापस भी करने होंगे. अब जहां से भी आपने बैंक से या जहां से भी वो पैसे लिए हैं, अब आपको वो जब वापस करने हैं, एग्जैक्टली आपको 5 लाख तो वापस करने ही करने हैं, बट सम इंटरेस्ट ऑल्सो यू हैव टू वापस, दैट इंटरेस्ट ऑल्सो. कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो पर्सन जो जहां से भी आपने वो पैसा लिया है, वो आपको कुछ इंटरेस्ट लगाएगा, ब्याज लगाएगा, वो आपको एक्स्ट्रा उसकी 5 लाख की मनी यूज करने का एक तरीके से वो रेंट लेगा. जैसे आपने घर लिया है रेंट पे, तो आप घर को यूज कर रहे हो किसी के, तो आप उसके लिए उसको उसका कॉस्ट दे रहे हैं. सिमिलरली आप किसी के पैसे यूज करेंगे, तो उसके पैसे यूज करने के लिए भी आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं. तो आपको वो पैसा वापस भी करना है. Third and fourth important point is what you needed and what you got. How you're going to balance that. That is very important. What it means, मुझे 5 लाख चाहिए, ठीक है, मेरी सारे डॉक्यूमेंट सही है, मेरी क्रेडिट वर्दीनेस, मेरा सिविल स्कोर सब सही है. बैंक वाले मुझे कह रहे हैं आप 7 लाख ले लीजिए, बिकॉज आप जो 7 लाख हम आपको दे सकते हैं. सो इज इट ओके फॉर मी टू रेज 7 लाख वेयर आई नीड जस्ट 5 लाख? क्या होगा? 7 लाख मैंने उठा लिया, जरूरत मुझे 5 लाख की थी, 2 लाख मैंने फालतू का उठाया. तो दिस काइंड ऑफ इम्बैलेंस, और दिस काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन शुड नॉट बी देयर. अगर आपको 7 चाहिए, अगर आपको पता है मुझे 7 कहाँ का लगाना है, दैट इज ओके. बट कितना आपको चाहिए, कितना आपको मिल रहा है, मतलब 5 चाहिए तो 5 मिल रहा है, गुड है. 5 चाहिए तो 3 मिल रहा है, या 5 चाहिए तो 7 मिल रहा है, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कितना चाहिए और कितना मैं उठा रहा हूँ. आइडल फंड इज ऑल्सो नॉट गुड, ओवर फंड आर ऑल्सो नॉट गुड. So this is the very important concept of financial management, and very important thing is K should be less than R, or we can say C should be less than R. What is C or K? This is called cost. K या C डिनोट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट में.
जैसे मैंने बोला आपको 5 लाख चाहिए था, आपको 10% के रेट पे 5 लाख मिला, तो 10% आप, 5 लाख का हो गया 50,000, 50,000 आप उसके ऊपर कॉस्ट देने वाले हो। अब ये 5 लाख आप कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हो, उसको कहाँ पे यूज करने वाले हो। अब उस 5 लाख को यूज करने पे अगर आपको 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने पे आपको 50,000 रुपए वो नहीं देने वाली, अगर, तो वो आपकी इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है। व्हाट द रूल सेज कि जो आपको रिटर्न मिले पैसे से वो ज्यादा होनी चाहिए जितना आप उस पे कॉस्ट देने वाले हैं। The cost of raising fund should be less than the return you are going to get after the utilization of that fund. So this is the point over here, that return should be more than the cost. Now very important point, there are many other decisions also जो short term में आते हैं, ये long term decisions हैं कंपनी के financial management में, which includes financing decision, which includes investment decisions, which include your dividend decision. What it means, financing decision हो गया कि कहाँ से पैसा उठाना है आपको, बिकॉज दो सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल से जो कॉस्ट पड़ेगी वो डिफरेंट होती है, एक्सटर्नल से जो कॉस्ट पड़ेगी वो डिफरेंट होती है। तो कहाँ से पैसा उठाना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट वन, वो आपका होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। पैसा उठा लिया, अब उसको कहाँ पे लगाना है, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। थर्ड इज योर डिविडेंड डिसीजन, दैट इज पैसा उठा लिया, लगा लिया, अब आपको क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट आउट ऑफ दैट, पैसा आने वाला है उसमें से। तो प्रॉफिट जो मिलने वाला है आपको, उसको आपको, जो नेट प्रॉफिट बचेगा आपके पास, उसको आपको डिविडेंड होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है। करना है तो उसको सोचना पड़ेगा, नहीं करना है तो उसको रिटेन करके where you want to reinvest for your expansion or growth purpose of your company। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका तीन डिसीजन, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेन टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज कैपिटल बजटिंग, which is investment decision। तो what is capital budgeting? जो कैपिटल है आपकी, उसका आपने एक तरीके से बजटिंग करनी है। कैपिटल आपको आ गई, कैपिटल क्या है, जो आपने पैसा बिजनेस में लगाना है। पैसा आपके पास आ गया है, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख बिजनेस में लगाना है, 50 लाख आपके पास है, लेकिन बजटिंग में आप कहीं करेंगे कितना पैसा कहाँ पे लगाना है, कहाँ कहाँ पे आपने पैसा जो है इन्वेस्ट करना है। तो कैपिटल बजटिंग में हम वो देखेंगे। सो व्हाट इज एग्जैक्टली कैपिटल बजटिंग, आई एम गोइंग टू लेट यू नो वेयर टू इन्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 10 लाख रुपीज, ठीक है, मेरे को 10 लाख रुपीज कहीं से मैंने बोरो कर लिए क्योंकि मैंने कहीं पे अपना प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना था। अब मेरे सामने तीन ऑप्शन है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। प्रोजेक्ट ए मेरे को है कि वो 10 लाख रुपया ना मैं अपनी एक्सपेंशन में कर सकती हूँ, मैं थोड़ा सा अपना बिजनेस एक्सपैंड कर लेती हूँ वो 10 लाख लगा के। प्रोजेक्ट बी कहता है कि आप मेरे को, मैं जो मशीनरी यूज कर रही हूँ, उसी मैं जो काम कर रही हूँ उसमें एक न्यू मशीन मार्केट में आ रखी है, मेरे को वो न्यू मशीन खरीद लेनी चाहिए जिसका बजट 10 लाख ही है। थर्ड प्रोजेक्ट मुझे कह रहे हैं, थर्ड ऑप्शन मेरे पास है कि मैं किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर लूं, 10 लाख मेरे पैसे, 10 लाख लगेंगे, मेरे को जॉइंट वेंचर कर लेना चाहिए। ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल्स दिए हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड। और बेसिकली क्या होता है कैपिटल बजटिंग में, आपके पास ऑप्शंस हैं, तीन प्रोजेक्ट हैं या चार प्रोजेक्ट हैं, दो ऑप्शन है आपके पास। कैपिटल बजटिंग में करना क्या है, आपने देखना है, अगर तो आपके पास खुला पैसा है और दोनों प्रोजेक्ट फिजिबल है तो दोनों दोनों में लगा दीजिए। बट अगर अब मेरे पास सिर्फ 10 लाख है और तीनों प्रोजेक्ट में 10-10 लाख ही लगेगा, तो मेरे को अब क्या सोचना है कि मेरे को प्रोजेक्ट ए में जाना चाहिए, बी में जाना चाहिए, सी में जाना चाहिए। यहाँ पे कैपिटल बजटिंग आती है। कैपिटल बजटिंग में देयर आर टेक्निक्स, टेक्निक्स में हम प्रॉपरली मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट मैथमेटिकली नंबर वाइज रिटर्न वाइज फिजिबल है। तो रिटर्न वाइज फिजिबल देखने के लिए हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देयर आर मेथड्स फॉर द सेम, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, तो इनमें से पॉपुलर एनपीवी एंड आईआरआर है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग,
प्रोजेक्ट ए इज देयर, प्रोजेक्ट बी इज देयर, प्रोजेक्ट सी इज देयर, मेरे को कहाँ लगाना चाहिए? इंटरनल फैक्टर्स कैन बी द प्लेस ऑल्सो, बट अभी मैथमेटिकली देखने के लिए देयर आर टेक्निक। तो जब मैंने वो टेक्निक से कैलकुलेट किया, फॉर एग्जाम्पल, वो क्या मैंने देखना है कि मुझे प्रोजेक्ट ए कितनी रिटर्न देगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, फॉर एग्जाम्पल 5 सालों में, जब भी वो रिटर्न देना स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल तीनों प्रोजेक्ट मुझे 3 साल बाद रिटर्न देना स्टार्ट कर रहे हैं, 2 साल बाद रिटर्न देना स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट ए मुझे कितनी रिटर्न देगा, प्रोजेक्ट बी मुझे कितना रिटर्न पैसा देगा, प्रोजेक्ट सी मुझे कितनी परसेंटेज रिटर्न देगा। तो व्हेन बाय अप्लाइंग दोस फॉर्मूलाज, बाय अप्लाइंग दोस मेथड्स, मैंने देखा प्रोजेक्ट ए विल गिव मी 11% रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, sorry, return on investment. Project B will give me 13% rate of investment. Project C will give me 16% return on investment. ठीक है जी। अभी अगर यहाँ से देखा जाए, अगर मेरे पास कुछ और नहीं है, तो आप कोई भी देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट सी हमें ज्यादा पैसा दे रहा है, 16% की रेट दे रहा है। तो हमें एक और चीज देखना है कि मुझे जितना भी 10 लाख लगाना था, मुझे 10 लाख पे कॉस्ट कितनी पड़ रही है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग कितनी पड़ रही है? 10%। फॉर एग्जाम्पल ये 10% से कम होते रिटर्न, तो मेरे लिए कोई भी प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं होता। कॉस्ट ऑफ बोरिंग हो गया कि मैंने पैसा 10% पे उठाया है, और मुझे वो पैसा अगर मैं प्रोजेक्ट ए पे लगाऊंगी तो मुझे 11 मिलेगा, प्रोजेक्ट बी पे लगाऊंगी मुझे 13 मिलेगा, प्रोजेक्ट सी में लगाऊंगी मुझे 16% वापस मिलेगा। तो इस अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा परसेंटेज तो प्रोजेक्ट सी का है। बाकी चीजें देखते हुए मुझे देखना है कि प्रोजेक्ट सी रेट ऑफ, मतलब मैथमेटिकली तो मुझे प्रोजेक्ट सी के साथ जाना चाहिए। तो प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी तो को मैंने नलीफाई कर दिया यहाँ पे। तो दिस इज वन थिंग मैथमेटिकली जो हम कैपिटल बजटिंग में करते हैं। और कैपिटल बजटिंग में जो मैथमेटिकली आप करते हैं, देयर आर टू डिफरेंट एरा ऑफ मेथड्स। एक तो आपके आ जाते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स, पुराने मेथड्स हैं, और जिनको हम नॉन डिस्काउंटेड मेथड भी कहते हैं। एक आपके आ जाते हैं मॉडर्न और डिस्काउंटेड मेथड्स, जिनमें डिस्काउंटिंग करके हम जो है फाइंड आउट करते हैं। इसके ट्रेडिशनल के अंदर आप देख ही सकते हैं, पे बैक पीरियड है, पोस्ट पे बैक पीरियड है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, और आपके डिस्काउंटिंग वाले में नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज एनपीवी, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। तो अब इन मेथड्स में मैं इस वीडियो में नहीं बात करूंगी, नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रिपेयर फॉर द मेथड्स, एक एक मेथड के ऊपर वीडियो बनाएंगे। बट अभी के लिए आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ये वाले मेथड्स जो हैं, डिस्काउंटिंग मेथड, दीज आर द पॉपुलर वन एंड कंपनी यूजेस दीज मेथड्स ओनली। हमें पता होने चाहिए और कौन से मेथड हैं, बट बेसिकली ये दो मेथड्स आर द पॉपुलर वन जो कंपनी एग्जैक्टली यूज करती है, नेट प्रेजेंट एंड आईआरआर। उसको समझने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा डिस्काउंटिंग मेथड क्या होता है, डिस्काउंटिंग मेथड क्या होता है और नॉन डिस्काउंटिंग क्या है। डिस्काउंटिंग मेथड होता है जब हम जो पैसा हमारे पास आने वाला है फ्यूचर में, उसको हम डिस्काउंट करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके सब कैलकुलेशन करते हैं। अब वो क्या सिस्टम है, वो आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैंने एक फुल फ्लेज वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आई विल पुट द लिंक। इफ यू वांट टू सर्च आउट दैट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यू कैन गो एंड सी दैट वीडियो एज वेल। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे थोड़ा सा मैं टच कर देती हूँ, व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्यों डिस्काउंटेड मेथड गुड है, और क्यों, व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नाम में ही इसका मीनिंग है कि वैल्यू ऑफ मनी एज अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन टाइम, और टाइम के साथ साथ वैल्यू ऑफ मनी के बारे में कुछ बताया जाएगा इसमें। तो आई एम जस्ट गोइंग टू लेट यू नो विद एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हम 3 इयर्स देते हैं, ईयर 2021, ईयर 22 और ईयर 23 कर दिया हमने। फॉर एग्जाम्पल एवरी ईयर आई एम हैविंग सम मनी विद मी, सेम अमाउंट ऑफ मनी। 500 मेरे पास 2021 में है, 500 का नोट मेरे पास 2022 में है, 500 का नोट मेरे पास 2023 में है। व्हाट हैपेंस अगर मैं आज, और मतलब पिछले साल 2021 में अगर मैं कुछ लेने जाती हूँ फॉर एग्जाम्पल मार्केट में, तो फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू परचेज आटा, फ्लोर, आशीर्वाद का आटा ले रही हूँ। मेरे को 3 पैकेट्स जो हैं, इफ यू कैन सी 5-5 kg के फॉर एग्जाम्पल दीज पैकेट्स आर, तो और 10-10 kg के 30 kg वी कैन से, मेरे को टोटल 30 kg आता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ओनली, सच में मत देखने लग जाना कि ये तो इतने का आता है और 500 में 3 पैकेट कैसे आ रहे हैं, जो कि नहीं आएंगे अभी भी। तो मैं वैसे भी 2021 की बात कर रही हूँ। 2021 में आपको 3 10-10 किलो के आशीर्वाद का पैकेट मिल रहे थे आटे का, ठीक है, 500 में।
2022 में this is not going to happen that you are going to get the same quantity. So for example 2021 में आपको सेम 500 के नोट पे 2 पैकेट ऑफ 10 kg के आशीर्वाद का फ्लोर मिला मल्टीग्रेन. 2023 में दिस इज अगेन नॉट गोइंग टू हैपन कि आपको सेम क्वांटिटी मिले. 2023 में फॉर एग्जांपल आपको 10 kg का सिर्फ एक ही पैकेट मिला. So this is the concept of time value of money. That value of money we are talking about here. आपको बहुत important चीज समझने की जरूरत है कि आप अगर देखेंगे नोट तीनों साल में सेम है. नोट मतलब पैसे मेरे पास तीनों ईयर में 2021, 22, 23 तीनों में मेरे पास 500 रुपए थे. लेकिन जो पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर 500 थी वो डिक्रीज हो गई ओवर द ईयर. या वैल्यू ऑफ मनी हम कह सकते हैं, पावर ऑफ मनी कह सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ मनी कह सकते हैं. यहाँ मैं 3 पैकेट खरीद पा रही थी, अगले साल मैंने 2 खरीदे, अगले साल मेरा 1 पैकेट हो गया, अगले साल में भी वो इंक्रीज हो जाए. सो व्हाट इट सेज, जो बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि 1 रुपए की वैल्यू या पैसे की वैल्यू जो है डे बाय डे और ईयर बाय ईयर डिक्रीज होती है. वैल्यू की बात कर रहे हैं, मैं नोट की बात नहीं कर रही. 500 ही है बट इसकी पावर जितना मैं उस नोट से 10 साल पहले खरीद सकती थी उतना मैं आज नहीं खरीद सकती हूँ. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड हाउ इट कम्स इन कैपिटल बजटिंग. मैं आज किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही हूँ, जैसे हमने अभी बात करी ना प्रोजेक्ट वाली, ये प्रोजेक्ट मैं आज किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रही हूँ. प्रोजेक्ट सी में फॉर एग्जाम्पल मैं पैसा लगा रही हूँ. मैंने कितना पैसा बोला था, 10 लाख रुपया मैं लगा रही हूँ. 10 लाख में आज 2022 में लगा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वो 10 लाख मुझे आने वाले 3 साल में 10 लाख वापस आने वाला है. 3 years में मुझे 10 लाख ही वापस आने वाला है. So that 10 lakh is not going to equal to today's 10 lakh as per that equation. वो 10 लाख नहीं होगा, उसकी पावर उतनी नहीं बची होगी. आज मैं 10 लाख जो लगा रही हूँ ना, आने वाले 3 सालों में वो 10 लाख, अगर मैं 10 लाख में आज कुछ खरीदूंगी ना, 3 साल बाद में मुझे 10 लाख में नहीं मिलेगा. मोस्ट इम्पोर्टेंटली 20 लाख तक पहुंच चुका होगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज दैट. अगर प्रॉपर्टी है फॉर एग्जाम्पल तो डबल हो चुकी होगी मे बी. कुछ और चीज है उसका प्राइस ऑब्वियसली उसका भी डिफरेंटली बढ़ चुका होगा. तो दैट इज द पॉइंट कि ये आपका ये जो है ये मेथड जो आता है यहाँ पे, ये डिस्काउंटिंग मेथड की जब हम बात करते हैं, ये वाला टाइम वैल्यू ऑफ कॉन्सेप्ट हम इसमें फॉलो करते हैं, जो कि करना चाहिए लॉजिकली. कि मेरे जब 3 लाख 10 लाख आज के आने वाले 3 साल के बराबर नहीं है, तो मैं जब अपनी कैपिटल बजटिंग के अकॉर्डिंगली पैसा लगा रही हूँ, 16% रिटर्न वो मुझे दे रहा है या पैसा लगा रही हूँ, मैं एग्जैक्ट देखूं कि आज का 10 लाख फ्यूचर में कितने सालों में मुझे उतना पैसा वापस मिलेगा, वो कैलकुलेशन करके मुझे पता चले. तो वो हम कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग, देयर आर फर्दर मेथड्स फॉर दैट. उसके लिए आपको वो पता होना चाहिए, देन वी कैन कैलकुलेट दैट एज वेल. तो ये जो मेथड्स हैं एनपीवी और आईआरआर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, उसमें हम वो चीज को कैप्चर करके कैलकुलेशन करते हैं. सो ओनली दीज आर द बेस्ट वन. तो ये आपका डन हो गया टाइम वैल्यू. हाँ, सो ये मैंने क्रॉसेस नहीं लगाए थे, दैट इज कि ये 2001 2021 के इक्वल नहीं हुआ ये 500. सिमिलरली 2022 का 23 से तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा. So this is your time value of money concept and these are the methods. वीडियो आई थिंक बहुत लंबा हो गया है, तो मैं मेथड्स अभी नहीं बात करने वाली. In the next video we are going to talk about methods, but right now in this video my main point was to make you understand about the concept of capital budgeting and time value of money and little bit of financial management as well. So thank you. With this I'm going to end this video over here. If you like this video, please like the video and also subscribe my channel and also comment down if something you want to hear from my side. कुछ और टॉपिक अगर आपको देखना है तो.